Hey everyone, welcome to the Elixir. This is Sakshi Mishra. Today I have something which is very special for you all guys. Any guess, any idea what is it? Yes. Yes, I'm very glad to share with you all that I have a molecular biology lecture series and I'm gonna to upload one by one which will be include all the topic regarding the molecular biology, okay? And each lecture and will be easy to understand. As a result, you can gain higher marks in this subject in your BSc as well as MSc, and also all the life science examinations for what you are preparing for, okay? And yes, the one thing which I'd like to tell you guys, this series, I mean to say in this lecture series, every topic will be covered, will be easy to understand, and you can trust on me. Each term will be trapped in your brain. Okay, so I would like to glad the one things also which is related with me, that I have gained 90 plus marks out of 100 in this subject during my master, and I became a top rank holder for only because of this subject, and I am totally in love with this subject and I want to make you too guys, okay? And so this is the molecular biology. Every student has a fear, okay, to study because they think like it's a hard nut to crack. But trust me, it's as soft as cream, guys. Yes, it's a very soft, very easy to understand. But for this, you will have to do one thing. What you need to do, you have to follow up my every lecture regarding this molecular biology subject, and you really want to develop your concept regarding molecular biology. If you really, yes, if you really want to develop your concept regarding the molecular biology, okay? So today is the lecture first, in which we will see the some introduction regarding the molecular biology. For example, if we go for any interview, first of all the interview viewer asks about ourselves, then there is the process of screening and then the eligible, then after that, after completing every round, and then we will eligible for the particular, for that particular job. So similarly, we are gonna to study about the molecular biology. So before beginning in the details, we need to something know about the molecular biology. Are you guys excited? Yes, I'm damn sure you will be excited. Okay. So द एज यू कैन सी कि आज की जो टॉपिक है वो है वाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. आखिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं, तो ये सारा कुछ आंसर आप इस लेक्चर में जानने वाले हो. और अगर आप 11th के या 12th के स्टूडेंट हो, आप ये लेक्चर देख रहे हो, या फिर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आप डोंट थिंक कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. इट्स वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आपके रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और सारे के सारे मैंने ऑथेंटिक बुक्स, स्लाइड्स एंड एज वेल एज फ्रॉम माई ऑन नोट्स से इसको सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है. तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज टॉपिक. व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? Ever you thought? Yes. Okay. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है साइंस की जिसके अंदर हम बहुत सारे बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करते हैं, डील करते हैं. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को सबको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉकर्स है. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है. तो ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया. ठीक है, इसके फंडामेंटल प्रोसेसेस को, कैसे कोई भी चीज़ मीन्स डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, कैसे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे डीएनए ने रेप्लिकेट किया, कैसे लाइफ में ये सारे के सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है. इसको हम मॉलिक्यूलर फील्ड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं. ओके, अगर सिंपली ये भी डेफिनेशन नहीं समझ आया तो हमारे पास एक और डेफिनेशन है. व्हाट इज इट? सी,
we can see the molecular we can define the molecular biology as an area of biology that study the structure and interaction of the DNA, RNA and protein at the molecular level. Okay, अब यहाँ पे बात आती है मॉलिक्यूलर लेवल की. हम मॉलिक्यूल की लेवल पे क्या करते हैं, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को, उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं. मॉलिक्यूलर लेवल से यहाँ पे क्या मीनिंग है. मॉलिक्यूल तो सबको पता है कि एक क्या होता है कि मॉलिक्यूल और एटम्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ओके, तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि एक दूसरे के साथ क्या होता है, बॉन्ड बना करके, ठीक है, बॉन्ड बनाता है और उसके बाद कनेक्ट होकर के, कह सकते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, मीन्स whenever two or more atoms connected by the chemical bonds we will call it molecule. और सिमिलरली हम एटम के बारे में भी जान लेते हैं. एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी कोई एलिमेंट को क्या करता है, बना, मीन्स उसके स्मॉलेस्ट, किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं. तो ये चीज़ तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, बट वी आर as of now as a biologist, okay, we are as a biologist, how can we define the molecule. तो मॉलिक्यूल क्या है कि यह बहुत ही कह सकते हैं, अगर हम बायोलॉजी में डिफाइन करना चाहे तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो एक किसी भी पर्टिकुलर सबस्टेंस को डिवाइड कर सकती है, और डिवाइड करने के बाद विदाउट एनी केमिकल, उसके विदाउट चेंजिंग उसके केमिकल नेचर को, उसके केमिकल जो नेचर है किसी भी सबस्टेंस को, उसको डिवाइड कर तो देती है बट उसके केमिकल नेचर को चेंज नहीं करती. ये होता है मॉलिक्यूल. तो ये मॉलिक्यूलर लेवल यहाँ पे जो दे रखा हुआ है ना, इसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करते हैं. किस लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे कोई भी एक जेनेटिक वेरिएशन हमारे जीन्स में हुआ, कि हम अपने पेरेंट्स से क्या हमने अचीव किया या फिर क्या हमने इनहेरिट किया, इन द सेंस कि हम थोड़े से वेरिएंट हो गए. ठीक है, हमने वेरिएशन कॉज किया, हम क्रोमोसोम तो हमने इनहेरिट किया बट हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हमारे पेरेंट्स से अलग है. इतने सारे डिफरेंट जीन्स हैं वैरायटी के, ये सारा का सारा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. तो सिंपली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, ऐसा एरिया है जिसके अंतर्गत हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर होने वाले फिजिकल, केमिकल या फिर कह सकते हैं उनके अंदर रिएक्शन को, इनके बीच में इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं थ्रू द डिफरेंट प्रोसेसेस. Okay, now I am hoping that what is molecular biology, everyone has a clear mindset regarding this. Now suppose आपके एग्जामिनर्स ने ही पूछ लिया कि क्या है molecular biology, तो I am damn sure now you are going to tell them कि what is the molecular biology. Now see, जो molecular biology के फादर हैं उनको लिनियस पाउलिंग के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स लिनियस पाउलिंग वॉज द फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फादर है फ्रेड सैंगर. इसके साथ साथ जो टर्म था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसको 1945 में विलियम एस्टबेरी ने कॉइंड किया था. विलियम एस्टबेरी, यस, इन्होंने ही क्या किया था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे नेम को, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा था या फिर टर्म दिया था. इन्होंने ये बताया कि कैसे बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होती है, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बीच में कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. इस सारे के सारे सिस्टम को देने के बाद आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को का स्कोप हर जगह देख सकते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से आज इतना सब कुछ जीन के लेवल पे डिस्कवरी हो चुका है. इवन द रिसर्चर्स आर कीप्स ऑन गोइंग. ओके, तो ये कैसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है या फिर कैसे सब कुछ हो रहा है, हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे और इवन हमको सब कुछ पता चल जाएगा इस लेक्चर में. ठीक है, तो ये था बेसिक कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या. हर जगह, हर एक एरिया में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रोल है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, इट कैन बी एनीथिंग, चाहे वो एनिमल हो, सेल हो, प्लांट हो, या फिर मॉलिक्यूल हो, या फिर पॉपुलेशन हो, या कम्युनिटी हो,
कहीं भी चले जाओ आपको जीन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास जीन्स हैं, और जीन्स के कारण ही हम हर एक चीज़ को समझ पा रहे हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ हो रही है तो हम समझ पा रहे हैं कि ये हम पर्टिकुलर ड्रग देंगे तो वो इंडिविजुअल को मीन्स इफेक्ट होगा, वो ठीक हो जाएगा सुन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Why we study the molecular biology? Okay, are you thinking really now कि हमें molecular biology क्यों पढ़नी चाहिए या क्यों समझना चाहिए molecular biology के बारे में? हमने पहले स्लाइड में ही इतना सब कुछ जान लिया कि अभी नाउ डाउट ही क्रिएट नहीं होता कि why we study the molecular biology. Still, I would like to tell you कि इस molecular biology जो है, इसी की वजह से इतने सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स को मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने बहुत सारा अपना रिसर्च और बहुत सारा अपना कंसेप्ट को दिया है, पब्लिश किया है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टडी के दौरान ही बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ हुआ, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नाउ डेज डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर कोई भी साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ भी डेवलप किया, ठीक है, कोई भी टेक्निक यूज़ किया, तो उसको उन्होंने इतने ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस किया क्योंकि एक जीन के लेवल पे उन्होंने फंक्शन को उसके पब्लिश किया। तो यही एक एरिया था जहाँ पे हर एक पॉसिबल चीज़, ठीक है, हो सकती थी इसी फील्ड में। इसीलिए साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड में अपना, कह सकते हैं, पब्लिश किया, कंसेप्ट को दिया, डिफरेंट डिस्कवरीज की। नाउ सी कि ये टेक्निक्स जो उन्होंने यूज़ किया उसकी वजह से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। पहला कि इफिशियंटली टारगेट द न्यू ड्रग्स। ठीक है, इफिशियंटली टारगेट द न्यू ड्रग्स। नए ड्रग्स को कैसे किसी भी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिकली क्या हो रहा है, इंट्रिंसिकली एसोसिएट किया जा रहा है। आर यू नोइंग मीन्स कैन यू इमेजिन लाइक कि हमें एक पर्टिकुलर डिजीज है और हम वही चीज़ मीन्स मेडिसिन एज अ ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, और हमारा वो पर्टिकुलर डिजीज जो हो रहा है वो ख़त्म हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? क्योंकि वो जो जीन्स था उसकी इतनी डिस्कवरी हुई, जो वो पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर रहा था, उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी हुई, और उसके अगेंस्ट हमने पेन किलर दिया, हमने ड्रग्स दिया, हमने मेडिसिन दी, और वो टारगेट डिजीज पे जाकर के पेशेंट के उसने इफेक्ट डाला, और वहाँ की जो डैमेज्ड सेल्स थी या इंजर्ड सेल्स थी, या कह सकते हैं जो डिजीज कॉजिंग सेल्स थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। तो कैसे एक डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं किसी भी बॉडी के अंदर, कोई भी ऑर्गन के अंदर अगर कोई भी ड्रग एड्रेस किया जा रहा है, विच मीन्स पहुंचाया जा रहा है, वो किस तरीके से इफेक्टिवली हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, मीन्स एसोसिएट करके हमें वेल कर रहा है, मीन्स हम डिज़ायर्ड तरीके से इफेक्ट गेन कर सक रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है कि हम इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली सेल के फिजियोलॉजी से रिलेटेड। मीन्स सेल हर एक कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक, कह सकते हैं, एक मेटाबॉलिज्म का हब है सेल हमारी बॉडी के अंदर। वहाँ पे सारे के सारे सेल्स, सारे सेल्स के अंदर का जो कंटेंट है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, वो क्या हो रही है कि हर एक सिंगल सेकंड में वो डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने के बाद वो हर एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं जो एक बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेल की फिजियोलॉजी कैसे सारा का सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर कैरी आउट हो रहा है, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से ही ये सारा का सारा कुछ बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया। नाउ सी, डायग्नोज द डिजीज प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट एज वी डिस्कस इन here the target new drugs. Okay,
हम डायग्नोज कर ले रहे हैं डिजीज को। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कैंसर का, हम ट्यूमर कैंसर की को कैसे बता पाएंगे कि ये ट्यूमर है या फिर ये कैंसर है? ये सारा का सारा कुछ एमआरआई टेक्निक वगैरह यूज करके हमने जीन्स के लेवल पे स्टडी करी है, साइंटिस्ट ने जीन्स के लेवल पे स्टडी करी है। दैट इज वाई उनको ये चीज़ पता है, और ये चीज़ डिटेक्ट हो सकती है कि अभी कैसा ये कैंसर है। क्योंकि अगर हमने कैंसर का एग्जांपल लिया तो सबसे पहले अगर उसने एक जगह पे डिवाइड होना स्टार्ट किया, मीन्स एक क्लम्प बनाना स्टार्ट किया, तो हम उसको एट पर्टिकुलर टाइम बोल देंगे ट्यूमर। बट अगर उसने मेटास्टासिस शो की, विच मीन्स अगर वो ट्रांसफर्ड होने लगा वो क्लम्प्ड फॉर्म करने के बाद, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि अब जो है ये जो ट्यूमर था वो मैलिग्नेंट हो चुका है, मीन्स अब ये कैंसर कॉजिंग सेल्स बन चुका है। तो कैन यू इमेजिन लाइक हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कीमोथेरेपी दे करके किस तरीके से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हमने ट्रीटमेंट दिया है, डायग्नोज किया है डिजीज को, लाइक HIV, एड्स, एवरी डिजीज। Nowadays everything is possible, every patient is going to well for by different respective treatment. Okay, now see the restriction enzymes क्या चीज़ है कि ये हम कोई भी पर्टिकुलर डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर के अगर हमने किसी फ्रेगमेंट डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करना है तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर के उस पर्टिकुलर मीन्स हम जो डीएनए का फ्रेगमेंट कट करना चाहे और उसको नए इंडिविजुअल में इंसर्ट करना चाहे, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि ये एंजाइम हमारे डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करता है, फ्रेगमेंटाइज करने के बाद वो हम मीन्स उसकी कॉपीज बना सकता है, या फिर उसको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मीन्स बहुत सारे जिस ऑर्गेनिज्म में हम चाहें उसको डीएनए को फ्रेगमेंट करके उस इंडिविजुअल में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कैसे एक डिफरेंट डीएनए का स्ट्रैंड होकर के एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक सिंगल स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड हाइब्रिडाइजेशन के बन जा रहे हैं। हम इसकी वजह से डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है, हम अपने डिज़ायर्ड क्रॉप को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं। जैसा हमें क्रॉप चाहिए हम वैसा ले रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे तो पोमैटो, लाइक एक पोमैटो प्लांट आया था जो कि हाइब्रिड था, जो कि टोमेटो और पोटैटो का कॉम्बिनेशन था। ओके, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम जिसका कि बॉटेनिकल नेम है, तो हाइब्रिड था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि यहाँ पर टेक्निक्स का यूज़ करके ऊपर जो था प्लांट के वो टोमेटो वहाँ पे लगता और जो ट्यूबर वाला एरिया था वहाँ पे पोटैटो लगता। कैन यू इमेजिन कि मीन्स दो अलग अलग वेजिटेबल्स जो कि एक ट्यूबर है और एक फ्रूट है एक ही प्लांट पे होने वाले थे, इवन हुए भी हैं। तो ये सारा का सारा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। हमने हाइब्रिड बनाया और हमने अपने क्रॉप को इम्प्रूवमेंट किया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, जिसमें से कि हम एक छोटे से डीएनए को लेते हैं और एक सिंगल डीएनए से हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके का बहुत सारा क्लोन करके कॉपी बना लेते हैं। क्लोनिंग इन द सेंस कि बहुत सारा कॉपी क्रिएट करना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। फिर डीएनए सीक्वेंसेस की वजह से, डीएनए सीक्वेंस इन द सेंस कि मीन्स हम जिस डीएनए को आजकल आपको पता है कि पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो चुका है ना। हमारा जो ह्यूमन जीनोम है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर का बना हुआ है। कैन यू इमेजिन लाइक कि इतना सारा सीक्वेंस ह्यूमन का जो जीनोम है डीएनए सीक्वेंस करना पॉसिबल था? यस, इट वाज डेफिनेटली पॉसिबल, बट ओनली बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ह्यूमन का डीएनए जो होता है ना is 98% आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द चिंपैंजीज। हम चिंपैंजी इसीलिए बोलते हैं हम क्या है कि चिंपैंजीज के मीन्स हमारे एंसेस्टर्स चिंपैंजी रहे हुए हैं।
तो इतना सारा एरिया है स्टडी करने का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से ही ये सारा का सारा कुछ पॉसिबल हुआ है। ये जेनेटिक कैंसर्स की इतने सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स की वजह से कि हमने ये जान पाए कि आरबी जीन, P53, जो डिफरेंट डिफरेंट जो सारे के जीन्स हैं, कोई रेटाइनोब्लास्टोमा कॉज कर रहा है, कोई जेनाइटल कैंसर कॉज कर रहा है, कोई लंग कैंसर, कोई क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, कोई लिम्फोमा, सारे के सारे कैंसर कॉज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे डिटेक्ट हुआ, कैसे पॉसिबल था, कैसे डायग्नोज हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे कैसे PCR प्राइमर वगैरह जोड़ करके हम टेम्परेचर प्रोवाइड करके थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, एंजाइम यूज़ करके जो बैक्टीरिया से निकाला जाता है, हमने एक सिंगल कॉपी से, एक बहुत छोटी सी कॉपी से DNA के इतने सारे क्या बना दिए, उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना दिए। तो ये सब कुछ क्या हुआ? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से ही शो हुआ, ठीक है, पॉसिबल हुआ। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? आपको कुछ अच्छा लग रहा है ये लेक्चर? अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। ओके, सो इसके साथ साथ हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। कैसे जानते हैं? लेट्स सी कि भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसे तो आया ही नहीं होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो रहा होगा उसके बिहाइंड की, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इंट्रोड्यूस होने जा रही है तो उसके पीछे कितना मीन्स वर्क होता है, ठीक है। हर एक साइंटिस्ट का हाथ होता है, उनका एक एम होता है कि हम अपनी रिसर्च को, अपने जो उनका फील्ड है उसको बेस्ट शो करें, है ना, उनको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करें। हर एक साइंटिस्ट अगर कोई भी रिसर्च कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो कुछ सिमिलरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में ही कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेट्स सी वन बाय वन। 1928, ओके, यह एक ऐसा ईयर था जिसमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि डिस्कवर्ड किया था फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमिनन यूज किया था। अब ये होता क्या है कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये प्रूव किया या इन्होंने ये मीन्स एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि लिविंग थिंग होती है, या कह सकते हैं एक जगह से दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र होती है एज अ जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नेम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक पेट्री प्लेट में क्या लिया, 2 स्ट्रेन रखे, एक एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया लिया और आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया। दोनों बैक्टीरिया जो लिए आर और एस स्ट्रेन के, वो बैक्टीरिया के नेम थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, यस, जो कि न्यूमोनिया कॉज करते थे चिल्ड्रेन में। न्यूमोनिया, यू नो, लाइक कोल्ड एंड कफ एंड यस समथिंग। तो वो यही बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जिसके कि उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए। एस स्ट्रेन वाला जो था वो वीरुलेंट था। अब ये क्या चीज़ होती है भला? वीरुलेंट जो होती है ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या स्ट्रेन होती है, ठीक है। इसकी कॉलोनी जो थी वो स्मूथ थी, एस स्टैंड फॉर द स्मूथ, और आर स्ट्रेन वाली की कॉलोनी रफ थी, इसीलिए उसको आर से डिनोट किया, और ये नॉन वीरुलेंट था, मीन्स ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। ओके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया कि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंसर्ट कराया और देखा कि रिजल्ट में क्या निकला कि माइस डाइज हो गया, मीन्स मर गया, क्योंकि मरना ही था उसको, क्योंकि एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया क्या था, डिजीज कॉजिंग, ये डिजीज कॉज कर रहा था, और फिर ऑब्वियसली अगर किसी को रोग होगा, सीवियर डिजीज हो जाएगी तो वो मर ही जाएगा। आर स्ट्रेन जो कि नॉन डिजीज कॉजिंग था, माइस के अंदर इंसर्ट कराया, माइस जिंदा था, ठीक है, माइस जिंदा था। क्यों? क्योंकि वो डिजीज कॉज कर ही नहीं रहा था, वो नॉन वीरुलेंट था। फिर इन्होंने एक बार क्या किया कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया। हीट किल्ड, आर यू फैमिलियर? Damn sure you will be familiar because you all have studied about the sterilization process.
जिसमें कि क्या होता है कि हर एक इक्विपमेंट्स को या फिर हर एक ऑर्गेनिजम्स को एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी हर एक माइक्रोब्स अगर जो हार्मफुल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या किल्ड हो जाए। सिमिलरली इस बैक्टीरियम को जो कि डिजीज कॉज कर रहा था, उन्होंने हीट किल्ड कर दिया उसको और सोचा कि अब तो उसको हीट किल्ड किया है, स्टेरिलाइज किया है, अब तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, तो रोग होगा ही नहीं, डिजीज होगा ही नहीं। तो एग्जैक्टली यही हुआ, उन्होंने माइस में इंसर्ट कराया और माइस जिंदा रह गया, क्योंकि डिजीज हुआ ही नहीं, उसको हीट किल्ड कराया था उसको। उस बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया को बॉयल करके, हीट दे करके, टेम्परेचर दे करके बैक्टीरिया को मार डाला था पहले से ही। लास्ट स्टेप में वो बहुत ही खुश हो रहे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने हीट किल्ड कराया, और साइंटिस्ट तो थे ही, जैसा कि हम भी एक क्या है, साइंटिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट है, हम भी अपना एक क्या करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं हर टाइम हर एरिए पे। तो उन्होंने भी दिमाग लगाया कि इसको हीट किल्ड कर देते हैं और आर स्ट्रेन जो कि नॉन कॉजिंग डिजीज वाला था, इसके साथ कंबाइन करेंगे और माइस के अंदर इंसर्ट कराएंगे, और माइस क्या होगा, जिंदा होगा, लाइव होगा, क्योंकि हीट किल्ड है, वहाँ पे रोग तो था ही नहीं, और आज आर स्ट्रेन तो ऑलरेडी क्या था, नॉन डिजीज वाला था। बहुत खुश हो रहे थे ये एक्सपेरिमेंट करा के, बट क्या हुआ, माइस ऊपर चला गया, माइस डाई हो गया और मर गया। तो फिर क्या उन्होंने रिजल्ट निकाला कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड करने के बाद भी व्हाट हैपेंड कि कुछ ना कुछ सबस्टेंसेस इस बैक्टीरिया, इस स्ट्रेन के रह गए होंगे जो कि लाइव्स थे, और उन्होंने आर स्ट्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर लिया, और आर स्ट्रेन जो कि नॉन डिजीज कॉजिंग था, नाउ ये डिजीज कॉजिंग में चेंज हो गया, और माइस जो था ऊपर चला गया। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की वजह से आज हम इतना कुछ जानते हैं कि किस तरीके से डीएनए मीन्स एक जेनेटिक मटेरियल, या कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे स्ट्रेन के अंदर। तो ये था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्रेज, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी सारी डिस्कवरीज हुई। नाउ सी 1915 में क्या हुआ कि एक हमारे कह सकते हैं सुपर साइंटिस्ट या सुपर डिस्कवरर आए, जिनको कि ई चारगैफ के नेम से जाना जाता है। उन्होंने डिस्कवर या डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो नंबर होता है ना एडेनिन एंड थाइमिन ग्रुप का, वो एडेनिन एंड थाइमिन ग्रुप का वो ऑलवेज इक्वल होता है गुआनिन और साइटोसिन की रेशियो से, ठीक है, के नंबर से। अब ये चीज़ क्या है भला, एज वी नो कि एडेनिन जो होता है वो डीएनए में थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर के जुड़ा मीन्स बाइंड होता है, एंड गुआनिन जो होता है वो 3 बॉन्ड से बाइंड होता है साइटोसिन के, ठीक है। ये सारा जो कुछ है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, ये सब कुछ हम हर अपने एक लेक्चर अपकमिंग में देखेंगे 1 बाय 1, बिल्कुल आसानी से, इजी लैंग्वेज में और सेल्फ नोट्स के जरिए, ओके। तो इनका कहने का मतलब ये था, ई चारगैफ के कहने का मतलब ये था कि अगर फॉर एग्जांपल ये ATGC जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन है ना, अगर ये 100% है किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर, तो एडेनिन अगर 40% है तो क्या होगा, थाइमिन भी 40% होगा, क्योंकि एडेनिन थाइमिन का रेशियो इक्वल होगा। तो 40-40-80 हो गया, और बच कितना गया 20, तो गुआनिन क्या होगा 10 होगा, एंड साइटोसिन भी 10 होगा, 10-10-20, क्योंकि ये भी तो रूल फॉलो अप होना चाहिए। ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 10% ग्वानिन की रेशियो होगी, 10 होगी रेशियो साइटोसिन की। तो ये सब कुछ हम अच्छे से देखेंगे, बट ये ओनली एक इंट्रोडक्शन है, ओके, तो डोंट बी वरीड अबाउट इट। फिर उसके बाद आए RW होले ने इन्होंने ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ट्रांसफर आरएनए, यस आरएनए जो कि 3 टाइप के होते हैं, mRNA, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए। और इन्होंने क्या करा कि HG खुराना के साथ एंड MW निरनबर्ग के साथ काम करा, और इन्होंने वॉन किया नोबेल प्राइज को, बिकॉज इन्होंने इतना अच्छा
एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कराया था या डिस्कवर किया था या रिसर्च किया था, जिसको जेनेटिक कोड के नेम से जानते हैं। जेनेटिक कोड की वजह से ही आज हम अपने पूरे बॉडी के अमाइनो एसिड, विच इज़ कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉकर्स है हमारे लाइफ का, हमारे बॉडी का। यू कैन थॉट समथिंग। तो ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में। इसके बाद डब्ल्यू गिलबर्ट एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सॉन और इंट्रॉन, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द सीक्वेंस और स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, इसको इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया ई गिलबर्ट ने। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेडरिक सेंगर ने एक सेकेंड नोबेल प्राइज को गॉट किया, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ 5400 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ 5 into 174 बैक्टीरियोफाज। तो इतने ग्रेट ये साइंटिस्ट थे कि इन्होंने 5 into 174 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही पूरा का पूरा सीक्वेंस कर डाला। कैन यू इमेजिन? ओके, तो इसके साथ साथ जो है एक बैक्टीरिया जिसका नेम है हीमोफ्लुएंजा इन्फ्लुएंजाई। ओके, तो उसमें क्या था कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई उस ऐसा बैक्टीरिया था जिसका सबसे पहले पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ था। ठीक है, और उसके साथ साथ एक सी एलिगेंस, एक निडेरियन है जो कि एक एनिमल है, उसका भी पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया था सबसे पहले एनिमल के केस में। नाउ सी, हमारे सुपर हीरोज वॉटसन एंड क्रिक, जिनको की कौन नहीं जानता, जिनकी वजह से आज हम देख रहे हैं हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, कैसे वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह इंटरवाइंड करके इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडिन के बेसिस से कनेक्टेड है। तो ये था सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड यस, द वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं लाइक एक्सॉन, इंट्रॉन, जेनेटिक कोड, डीएनए, आरएनए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इट वाज आवर बेसिक। ओके, इट वाज आवर बेसिक एंड स्टिल we will study in upcoming lectures, so don't be worried and don't create too much stress in our brain. Okay, we will see definitely one by one and with in very easiest language. ठीक है, now see what happens. कुछ मटेरियल एंड मेथड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। भैया हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ मटेरियल और मेथड्स भी तो होंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। कैसे हम सारा का सारा कुछ स्टडी कर लेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में? तो यहाँ पे सी कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैव मेड इन द इंटेंसिव यूज ऑफ वेराइटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरियोफाजेस एंड अदर वायरसेस, ई कोलाइस्ट, न्यूरोस्पोरा, प्रोटोजोअन्स एटसेट्रा in their investigations of varied nature। तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाजेस, वायरसेस, ओके, बैक्टीरियाज को, एरिस्टिकिया कोलाई को, ईस्ट को, प्रोटोजोअन्स को, और उनके डिफरेंट नेचर्स को। ठीक है, उन हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के को जीन लेवल पे डिस्कवर किया, विच मीन्स स्टडी की, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने उनके सारे पूरे जीन्स को सीक्वेंस किया और उनके बारे में डेप्थ में स्टडी की, और क्या अंडरस्टैंड किया कि डिफरेंट बायोकेमिकल इवेंट्स चलते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, जो कि एक वाइड एरे है बायोफिजिको केमिकल टेक्निक्स का, सच एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस आर यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में भी बताया या स्टडी करी, जो कि आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में यूज़ करके सब कुछ डिटेक्ट कर ले रहे हैं ईजिली। इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रिस्टलोग्राफी, अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन, जिसमें हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनेल्स को लेकर के लाइक अ मिक्सचर, समझ रहे हो ना, मिक्सचर हमारे घरों में होता है,
उसमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ डालते हैं और उसके क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं या टुकड़े हो जाते हैं, पीसेज हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक कुछ सिमिलर साउंड करता है, मीन्स साउंड नहीं करता, कुछ उसका भी फंक्शन ऐसा ही है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनल्स को उसके अंदर डालते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में मैंने यहाँ पे यस सेंट्रीफ्यूगेशन यू कैन सी हियर, उसको इन सारे के सारे ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसके अंदर डालते हैं और ये सारे के सारे पीसेस जो होते हैं, प्रोटीन अगर हमने लिया तो उसका भी पीसेस हो जाता है ग्राइंड होने के बाद, जिसमें से कि पीलेट और सुपरनेटेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सी। ठीक है, मेथड्स में क्या किया कि हमने कैसे पूरा का पूरा एक बैक्टीरिया में अपना जो डिजायर्ड था जीन उसको इंसर्ट कराया और हमने उस इंसर्ट हुए मीन्स उस जो हाइब्रिड या डिजायर्ड जीन्स था उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ट्रांसफ़र किया। ठीक, जैसे कि हमने रिसर्च किया जीन के ऊपर और हमने जीन्स फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर लिया। 1 second, let me zoom it. Yes, okay, see here, gene used to alter the bacteria for clearing up the toxic waste, जो इतने सारे टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, वेस्टेज मटेरियल्स जो कि हमने पूरी की पूरी इंडस्ट्री से या फिर अपने सीवेज से, ठीक है, होम से सब कुछ इंसर्ट करके रखा है हमने नदी के अंदर, कैसे वो बैक्टीरिया कैसे डिजेपियर होगा या फिर कैसे वो डिस्ट्रॉय होगा, कैसे किल्ड होगा, उसके जीन्स को हमने स्टडी करा और उसमें इंसर्ट कराया, उसमें डाला उस जीन को उस बैक्टीरिया के अंदर, या हमने ड्रग को क्रिएट कराया, ड्रग क्रिएट किया और उस बैक्टीरिया को किल करने का काम किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को कैसे हमने डिजोल्व कर लिया ब्लड क्लॉटिंग में, और हार्ट अटैक थेरेपी कैसे हमने यूज़ कर मीन्स समझ लिया कि हार्ट अटैक की थेरेपी कैसे देनी है, सब कुछ जीन के लेवल पे ही तो किया ना। ठीक है, आरबीसी के लेवल पे हमने जीन्स क्या किए, इंसर्ट कराए, आरबीसी से जीन निकाले और हमने उसको डिस्कवर किया टेक्निक्स के थ्रू, स्टडी की, और आज हम सारा का सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से सब कुछ कर पा रहे हैं। ओके, नाउ सी केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एज वी नो ऑलरेडी कि कैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से ही हम केमिकल नेचर समझ पाए जेनेटिक मटेरियल का, कैसे कोई भी डीएनए एंड आरएनए कैसे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कैसे एडिनिन ग्वानिन से अटैच रह सकते हैं। ठीक है, कैसे मॉलिक्यूलर हमने इसका फॉर्मूला जनरेट किया। ठीक है, लाइक डीएनए का फॉर्मूला C5H10O4 और आरएनए का फॉर्मूला C5H10O5 होता है। तो O4 एंड O5 के बीच में कैसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन मिसिंग होता है, इसीलिए हम डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन लिंकेज भी होता है, ये सब कुछ कैसे होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से, हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे आफ्टर ऑल इनको स्टडी किया है। दैट इज व्हाई नाउ वी आर स्टैंड हियर, और हम सारा का सारा अपने बॉडी के बारे में, हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कोई भी डिजीज डायग्नोज कर सकते हैं एंड उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इनके बारे में डेप्थ में हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, डीएनए आरएनए के बारे में। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। नाउ सी इट्स अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कैसे सीक्वेंस हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, द वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने इतना भी जो मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है, मेंशन करा है, इतना भी लिख डाला उस मीन्स टॉपिक में अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, तो आपको नो वन कैन गोइंग टू स्टॉप यू टू गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, मीन्स मार्क्स जितने हैं, गुड मार्क्स यू कैन से, नो वन कैन स्टॉप टू गेन द गुड मार्क्स रिलेटेड टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो सी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक
कह सकते हैं फील्ड रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से ही ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पॉसिबल हो मीन्स रहा है। तो जैसा हमने बताया कि जो डीएनए होता है हमारा, वो चिंपैंजी से 98% क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा वाइटल स्टेप्स फॉलो अप करते हैं, विच मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था कि यह एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसका कि एम था कि पूरे के पूरे कंप्लीट सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डीएनए को, ठीक है, जो बेस पेयर्स होते हैं, इसका बस यही एक एम था या कह सकते हैं गोल था कि इसको पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट के थ्रू पूरा का पूरा सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम को मीन्स पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड था उसको सीक्वेंस करना था, हर एक पेयर को, हर एक बेस पेयर को, ठीक है, जो कि बनाता है ह्यूमन के डीएनए को या फिर पूरा का पूरा जीन्स बनाता है, ठीक है, जो कि एक ह्यूमन पर्टिकुलरली ह्यूमन कंटेन करके रखता है। तो क्या हुआ इसके बाद कि यस, जो 1953 था, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ना, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, 1919 से स्टार्ट हुआ था एंड ये 2003 में पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था। 13 ईयर्स ये प्रोजेक्ट चला था, ओके। सब फर्स्ट ऑफ ऑल 1953 में वॉटसन एंड क्रिक के थ्रू हमने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए देख लिया था, ठीक है, उन्होंने प्रपोज कर दिया था। 1919 एक ऐसा ईयर था जहां पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया गया एंड 1997 में बैक्टीरिया जो कि था इरिस्टिकिया कोलाई, ई कोलाई के पूरे जीनोम को फुल्ली तरीके से सीक्वेंस कर लिया गया था। एंड देन क्या हुआ कि 1999 में क्रोमोसोम 22, ठीक है, ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 22 तक पूरी की पूरी तरीके से सीक्वेंसिंग हो चुकी थी एंड फाइनली द ईयर वाज केम द 2003 इन विच द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड सीक्वेंस्ड, ओके। तो इस आइडिया को जो था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो आइडिया था, इसको सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट में पिक्ड किया, ठीक है, इसको पिक्ड किया और इस प्रोजेक्ट को फॉर्मली लॉन्च कराया गया 1 अक्टूबर 1919 से और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ 2003 में। और इसको मेगा प्रोजेक्ट के नेम से भी जानते हैं। ये इसलिए जानते हैं मेगा प्रोजेक्ट नेम से क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया था, ग्रेट इन्वेस्टमेंट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच ने भी इसके लिए क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। एंड वेलकॉम ट्रस्ट जो कि लंदन में है, उसने भी इसके लिए इन्वेस्ट किया था। जापान, फ्रांस, जर्मनी और हमारा चाइना और बहुत सारे ऐसे मेगा कंट्रीज थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए वर्क किया और इन्वेस्टमेंट करा। अप्रॉक्स 9 बिलियन डॉलर्स इस प्रोजेक्ट की वर्थ हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं बिकॉज इट वॉज वर्थ अप्रॉक्स 9 बिलियन डॉलर्स। नाउ यू कैन थिंक कि अगर इतना सारा कंट्री किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है और इतने सारे बिलियंस, इतने सारे रुपए, वो भी डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस चली है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ये जो प्रोसेस चली, ये पूरी की पूरी 13 सालों तक चली। इसके प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे मेथडोलॉजीज हैं। फॉर एग्जांपल, पहले इनमें क्या होता है, इसकी प्रोसेस या मेथड्स चलते हैं कि सेंगर सीक्वेंसिंग कराई जाती है। एक मैं ऐसे फटाफट से बता देती हूँ। सेंगर सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम डीएनए के बारे में स्टडी कर लेते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। किसी भी एक इंडिविजुअल के डीएनए का स्टडी किया, फिर उसको डीएनए का सीक्वेंस कर लिया। अब डीएनए के सीक्वेंस करने के बाद क्या सीक्वेंस मीन्स क्या स्टडी करेंगे कि वो कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, एंड एज वेल एज हम उसके अमाइनो एसिड को भी क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे या सीक्वेंस कर लेंगे। फिर आफ्टर दैट क्या होगा कि हमने उसको उसके mRNA को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से
के हेल्प से हमने उसका एक क्लोन तैयार कर लिया, या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार कर ली। अब ये जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और मैसेंजर आरएनए मिला ना, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होने लगी, पेयरिंग करने लग गए ये दोनों। अब ये यहाँ पे आया आरएनएज। आरएनएज एक एंजाइम होता है जो कि हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में 1 by 1 सब कुछ देखेंगे, एवरी एंजाइम वी विल कवर। और क्या हुआ कि इस मीन्स जो इस बॉन्ड की पेयरिंग हुई थी, इसने क्या किया कि हर एक मीन्स मैसेंजर आरएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को उसने अलग कर दिया, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये रह गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जीन की क्लोनिंग हो चुकी थी। बट एज वी नो कि हमारा जो ह्यूमन बेस पेयर है 3 × 10⁹ बेस पेयर का पूरा न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो कैन यू थिंक कि पूरा का पूरा जो था डेटा को कलेक्ट करना किसी भी बुक में पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो अप्रॉक्स 3300 ओके बुक्स फिल हो जाती ये सारे डेटा को लिखते लिखते, किसी भी एक इंडिविजुअल के 3300, यस। और उस पर्टिकुलर बुक में 100 पेजेस होते तो थिंक कि कैसे ये सब कुछ पॉसिबल था। इसलिए उस डेटा को क्या किया गया, कंप्यूटर का या इंटरनेट का कह सकते हैं हेल्प लेकर के पूरे के पूरे डेटा को क्या किया गया, उसमें स्टोर कर लिया गया। और इसके मीन्स इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रूल्स भी है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है कि आप विदाउट लाइक ये है ना ALSI, एड्रेस द इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। ये सारे के सारे एक्ट लगाए जाते हैं इसमें कि कोई भी आपकी एक सीक्वेंस को देख नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो पूरा का पूरा कोई भी एक जितने मीन्स कह सकते हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है हमारे, लाइक प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक ऐसे सेलिब्रिटी हो गए, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसे एक एक्ट्रेस या एक्टर हो गए, हम उनका क्लोन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स, बिजनेसमैन क्लोन तैयार कर सकते हैं, उनकी एक कॉपी बना सकते हैं, जो कि क्या है, इलीगल है। इसके लिए ये सारे के सारे क्या चला जाते हैं, एक इथिकल लीगल सोशल इश्यूज, या फिर कह सकते हैं एक इसके थ्रू मीन्स क्या क्या देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे हम मीन्स कह सकते हैं ना कि अच्छी तरीके से रख सके, जिससे कि कोई उसको गो थ्रू ना कर पाए। तो ये सारा का सारा जो सीक्वेंस हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हमने देखा डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, और कैसे डीएनए की डिस्कवरी, जेनेटिक कोड का आना, सब कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से ही हुआ था, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कह सकते हो ना कि हर एक एरिया में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे रिसर्च हुए हैं, क्योंकि चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो या मीन्स माइक्रोब्स हो या फिर बड़ा एनिमल, हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, जीन्स हैं। अब जीन्स के अंदर उसके सारे फंक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है, उसके सारे फंक्शन को पता लगाना कि कौन सा जीन किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, कितना अच्छी तरीके से अगर हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एज ए रिसर्च सेलेक्ट किया तो हम कितने सारे स्कोप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीन्स हैं और जिस पे रिसर्च कैरी ऑन है और इवन चल रही है, ओके। तो द फर्स्ट जो मैंने पहले ही बता दिया था कि पहला जो सबसे पहले बैक्टीरियम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, उसके पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ भी सकता है ये। और एक सी एलिगेंस जो कि एक एक निडेरियंस होता है, यस, और एक एनिमल है बेसिकली, इसके सबसे पहले पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया था, ओके। सो यस, it was all about the introduction of molecular biology. And yes, if you want the every free lectures PDF now, then don't forget to join my Telegram channel, which I have already given in the description box, okay. So guys, stay tuned for more upcoming lectures, and that's all for now. And the most important slide is, yes, thank you for watching. Thank you for watching everyone.